we'll do Titus chapter 2 today. तो आज हम तीतुस की किताब दूसरे अध्याय करेंगे. And tomorrow, God willing, we'll do Titus chapter 3. अगर परमेश्वर की इच्छा है तो कल हम तीतुस की तीसरी अध्याय करेंगे. Titus is a small letter written by the Apostle Paul to Titus, who was the pastor of or shepherd of the church at Crete. तो हम देखते हैं तीतुस एक पत्री है जो प्रेरित पौलुस जो चरवाहे हैं जो क्रेती में उनको लिखते हैं. And Titus was not from Crete; he was a Gentile Christian that he was working with the Apostle Paul. The Apostle Paul had instructed him to be at Crete so that he can look after the church at Crete. तो हम देखते हैं तीतुस यहूदी नहीं थे परंतु वो पौलुस के संग सहकर्मी थे और तीतुस एक अन्य जाति से आए हुए विश्वासी थे और पौलुस ने तीतुस को जिम्मेदारी सौंपी कि जो क्रेती में जो कलीसिया है उसका देखभाल करे, उसे संभाले. Now the people of Crete, the Christians there had come from a very bad background, and the Apostle Paul also said that they were always telling lies and they were evil and lazy gluttons. तो हम देखते हैं जो क्रेती में जो कलीसिया के जो लोग थे जो विश्वासी थे बहुत ही पुराने बुरे एक जीवन से वो आए परिवर्तन हुए विश्वासी थे. तो उनके बीच में झूठ बोलना था, सारे बुरे काम, बुरे झूठ और बहुत सारे बुरे काम उनके बीच में चलता रहता था. And chapter 1 verse 10 it says they were very rebellious and they were empty talkers and used to tell a lot of lies. तो पहला अध्याय के 10 वचन में लिखा हुआ है कि वो धोखा देने वाले बकवादी विशेष करके खतना और निरुंकुश बकवादी थे. And verse 16 says they profess to know God but by their deeds they deny him. और 16 वचन में लिखा हुआ है वो कहते हैं कि वो परमेश्वर को जानते हैं परंतु अपने कामों से उसका इनकार करते हैं. And therefore they are detestable and disobedient and worthless for any good deed. क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले और किसी अच्छे काम के योग्य भी नहीं हैं. So this is the condition of many Christians even today in the church. तो यही हालत है बहुत सारे विश्वासियों की भी आज की कलीसिया में. They don't have personal relationship with the Lord. Once they had, but now they have gone back into the world. तो उनका जो है परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता नहीं है. पहले उनके पास वो व्यक्तिगत रिश्ता था परंतु अभी नहीं है और दुनिया में वो चले गए हैं अभी. Because by their deeds, their deeds are not matching to what their words say. तो उनके जो काम वो करते हैं उनके बातों से बिल्कुल भी अलग होता है. Because they are rebellious to God and not disobedient to the commandments of the Lord. क्योंकि वो परमेश्वर का विरोध करते हैं और परमेश्वर की जितनी व्यवस्था आज्ञा है उसका पालन नहीं करते. And therefore they cannot do any good things in their life. इसी वजह से उनके जीवन में कोई भी अच्छा काम वो नहीं कर पाते. Because God does not fill them with the Holy Spirit. क्योंकि परमेश्वर उनको पवित्र आत्मा से नहीं भरते. So we come to chapter 2 verse 1. It says, तो हम आएंगे दूसरी अध्याय की ओर और इसका पहला वचन. But as for you, speak the things which are fitting for sound doctrine. यहाँ लिखा है पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है. The Apostle Paul is saying that, see, let the other people behave as they want, but you always speak the right thing and the right teaching from your own life. तो प्रेरित पौलुस उनको कहते हैं कि दूसरों को जैसे जीना है उनको वैसे ही जीने दो परंतु आप जो है सही उपदेश और सही जो मार्ग है उसके अनुसार ही जीने की कोशिश करें. And because he was the elder and the pastor in the church, he had to give instruction to all the type of believers that were there in the church. क्योंकि एक कलीसिया में वो प्राचीन थे तो मुख्य थे तो उनको जो विश्वासी जो कलीसिया में थे उनको सारे जो उपदेश है सही तरीके से उन्हें देना होता था. So in the church there were older men, older women, younger men, younger women.
तो जो कलीसिया थे वहाँ पे बुजुर्ग जो पुरुष और स्त्री थे और जवान स्त्री और पुरुष भी थे। So that includes all the people in the church. तो उसका अर्थ है कि वो सब सब जो विश्वासी हैं उनकी कलीसिया में उसको मिलाकर। Just as we are gathered together, there are older people, there are older men, older women, young men and young women. जैसे कि हम यहाँ पे इस कलीसिया में इकट्ठा होते हैं, यहाँ पे बुजुर्ग स्त्री है, पुरुष है और जवान स्त्री और पुरुष भी हैं। So the Apostle Paul is writing to all of us. तो प्रेरित पौलुस जो है हम सभी के लिए इसे लिखते हैं। And verse 2 says, older men are to be temperate, dignified, sensible, sound in faith, in love and in perseverance. दूसरा वचन में लिखा है, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। Yeah. So as a person gets older, then maybe above the age of 40, then they should have self control, and their temper should be under control. तो एक पुरुष जब बूढ़ा हो जाता है, जैसे कि 40 के ऊपर हो जाता है, तो उनके पास एक गंभीरता होना चाहिए और एक संयमी स्वभाव उनका होना चाहिए। And they should live in a dignified way. और उनको एक बहुत ही गंभीर तरीके से और पवित्र तरीके से अपना जीवन बिताना है। They should be considerate to others, have good manners. तो वो दूसरे की ओर दयालु होने चाहिए और अच्छे बर्ताव वो रखने चाहिए। Both in the home and in the workplace and in the church. घर अपने खुद के परिवार में भी, हम जो काम करते हैं उस जगह पे भी और कलीसिया में भी। And they should be sensible, that they should not say all nonsensical things and they should not do any foolish work. और उनको बहुत ही जो सीधे तरीके से बात करना है, कोई भी मूर्खता का काम या मूर्खता की बातें उन्हें नहीं करनी है। And that comes when we keep on taking advice of other people and then we do the right thing. ये आता है जब हम दूसरे लोगों का जो सलाह है वो लेते हैं और फिर सही चीजों को हम करने लगते हैं। The Bible says in the multitude of counselors, when there are many good counselors, there is safety. तो बाइबल में लिखा हुआ है कि जो बहुत सारे सलाह लेने वालों में से है और अगर बहुत सारे सलाह देने वाले हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही सुरक्षा का कारण होता है। When we do things on our own, sometimes we do a lot of they make a lot of foolish actions. जब हम अपने आप से ही कुछ चीजों को करने की कोशिश करते हैं, बहुत बार हम बहुत ही मूर्खता की काम कर जाते हैं। And then we should be sound in faith and love and perseverance. That we should really be, our life should be an example of faith and love and perseverance means that we should have endure. फिर लिखा हुआ है कि हमारे अंदर जो है वो विश्वास होना चाहिए और प्रेम होना चाहिए और हमारे जीवन में एक धीरज जो पक्का है वो हमेशा होते रहना चाहिए। To be steady in our Christian life. तो हमारे जो मसीही जीवन में हमें एकदम दृढ़ होकर खड़े होना है। We should not keep on going up and down. After some time, when we become older, we should be steady in our Christian life. तो हमें बार बार नीचे ऊपर ऐसे जाते नहीं रहना है। जैसे ही हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमें अपने मसीही जीवन में बहुत ही स्थिरता से खड़े रहना है। So this is for older men. तो ये सारे जो बात है वो बूढ़े पुरुषों के लिए है। So if we are older men, we have to think much about these things. तो अगर हम बूढ़े पुरुष हैं तो हमें इन चीजों के बारे में ज्यादा कर सोचना चाहिए। Verse 3 now comes about the older women. और तीसरे वचन की ओर हम आते हैं, वहाँ पे बूढ़ी स्त्रियों को देखते हैं। They are again sisters who are above the age of 40. तो वो बहनें हैं जो 40 उम्र के ऊपर हैं। And he instructs them that older women likewise should be reverent in their behavior. तो वो उनको ये उपदेश देते हैं कि जो बूढ़ी स्त्रियां हैं वो अपने चाल चलन में पवित्र लोगों सा हो। They should have a respect for other people. तो उसका अर्थ ये है कि दूसरों के लिए एक मान सम्मान उनके अंदर होना चाहिए। Just because they're older, they should not keep on bossing about to other people and saying that I know everything. तो क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं इसीलिए दूसरे लोगों को घमंड दिखाकर ये कहते नहीं रहना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है।
They should be reverent. That means they should not keep on back answering people, back answering their husband or back answering older people. तो उनको बहुत ही पवित्र रहना है क्योंकि उनको किसी को उल्टा जवाब देना नहीं है, जैसे कि उनके पति को या दूसरे लोगों को जो उनसे बूढ़े हैं, बुजुर्ग है या दूसरे लोगों को। And they should talk with respect. Their speech should be with respect. और उनको बहुत ही मान सम्मान के साथ बातें करनी चाहिए। Then they should not be malicious gossips. और लिखा हुआ है कि उनके अंदर कोई बिना मतलब के गपशप नहीं होनी चाहिए। So this is known as malicious gossip. Gossip means to just talk about. Malicious gossip means to those who talk with great hatred in their heart. तो जो गपशप मतलब दोष लगाने वाले और दूसरों को घृणा रखकर जो गपशप करते हैं उसके विषय में है। Many old ladies keep a lot of hatred in their heart. They don't forgive people and they talk badly about other people. बहुत सारे जो बूढ़ी स्त्रियां हैं वो अपने हृदय में घृणा रखती हैं, दूसरे लोगों के बारे में बहुत ही बुरी बातें कहती हैं, उनको क्षमा नहीं करती हैं। What is gossip? गपशप करने का अर्थ क्या है? Just talking of idle talk that doesn't concern us at all. तो वो बेकार की बातें हैं जिसमें कोई भी लाभ नहीं होता है। And malicious gossips are talking with evil intent and putting down other people's reputation. तो दोष लगाने वाले गपशप यानी कि दूसरे लोगों का जो इज्जत है उसे उजाड़ देना और उनके बारे में बुरी बातें कहना। This is very common among many believers, ladies in the church. और ये सारी जो बातें हैं हमारे कलीसिया में बहुत सारी जो बूढ़े स्त्रियां हैं उनमें बहुत साधारण तौर पर पाई जाती हैं। They talk all bad things about other people behind their back, and that's why they become like very evil. They become like the devil. तो इसलिए वो बहुत सारे लोगों के बारे में पीठ पीछे बातें करती है, उनकी बहुत सारी बुरी बातें कहती हैं और बहुत ही दुष्ट बन जाती है शैतान के जैसे। That's why older sisters have to learn to control their tongue and not talk evil about other people. इसीलिए बूढ़ी स्त्रियों को अपने जुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि वो दूसरे लोगों के विषय में कोई भी बुरी बातें नहीं कहें। And then it says should not be enslaved to much wine. और फिर वहाँ लिखा हुआ है कि उनको पियक्कड़ नहीं होना चाहिए। See, in Crete there are a lot of grapes grown, and then they used to make wine was a normal common drink, just like we have tea in India. तो क्रेती में ऐसा था कि वहाँ पे बहुत सारी अंगूर की जो है खेती होती थी, इसलिए वहाँ पे जो अंगूर की जो दाक मधु है बहुत ज्यादा पिया जाता था, जैसे कि यहाँ पे हम चाय पीते हैं वैसे ही वहाँ पे जो पीना शराब पीना होता था। Because the older ladies, what happened once their children have grown up, they don't have much work to do, so they used to keep on drinking wine. तो क्योंकि बूढ़ी स्त्रियां जो है उनके जो बच्चे होते थे वो बड़े हो जाते थे और उनके पास कोई काम नहीं होता था, तो इसलिए वो पीने लग जाती थी। And the Apostle Paul said that they should not get addicted to wine. तो प्रेरित पौलुस उनको कहते हैं कि वो जो पियक्कड़पन की जो बात है उनके जीवन में नहीं होना चाहिए। Because if you get addicted to wine, then our behavior also will become bad. अगर आप पियक्कड़ हो जाते हो तो आपका बर्ताव भी जो है वो बुरा हो जाता है। But instead of doing that, they should teach that what is good, it says. और वो कहते हैं कि ये करने के बजाय वो दूसरे लोगों को अच्छी बातों को सिखाने वाली हो। As you grow older, we must do good things and teach the good things. जैसे ही हम बूढ़े होने लगते हैं तो हमें अच्छी बातों को करना है और अच्छी बातें दूसरे लोगों को सिखाना भी है। And verse 4 that they may encourage the younger women to love their husbands. और चौथा वचन में लिखा है ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती है कि अपने पतियों को और बच्चों से प्रीति रखें। They should not bring a division between the husband and the wife. तो वहाँ पे पति पत्नी के बीच में कोई दरार नहीं पैदा होना चाहिए। But they should respect and love their husband. परंतु उनको अपने पतियों को सम्मान देना है और उनसे प्रेम रखना है। And to love their children. और अपने बच्चों से भी उनको प्रीति रखनी है। Because now the children
grown old, so they should tell the younger the wives that they should love them. क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वो बड़े हो चुके हैं, तो उनके जो जवान पत्नियां हैं उनसे कह रहे हैं कि उन पतियों को जो है वो प्रेम करें। So now for the younger women also should love their children and love their husband. तो जो जवान स्त्रियां हैं उनको भी अपने पति और अपने बच्चे से प्रीति रखनी है। And verse 5, to be sensible. और 5वें वचन में लिखा है कि हमें संयमी होना है। To have control of ourselves and not to do foolish things. ताकि हम अपने ऊपर एक नियंत्रण रखें और मूर्खता के काम हम ना करें। Verse 5 says also to be pure. और 5वें वचन में और लिखा है पवित्रता। This is not written by young women. तो ये जो लिखा हुआ है जवान स्त्रियों के लिए है। To be workers at home. तो घर का कारोबार करने वाली। Young women who have children should, most of their work is done at home. तो जो जवान स्त्रियां हैं जिनके बच्चे हैं तो उनके बहुत सारे जो कामकाज रहते हैं घर पे ही होते हैं। To look after their husbands and look after their children. तो उनके पति और बच्चों का ख्याल रखना। And look after all the housework. और घर के जितने भी काम है उसको संभालना। And if they have time, they can do the work outside, but the primary work is the work. अगर उनके पास समय है, ब्रदर यू आर ऑन म्यूट है। Hello. Yes brother. The primary work is working at home. तो उनका जो प्रथम काम है वो ये है कि वो घर में अपने कामकाज को संभाले। And then there should be kind people. और उनको दूसरे लोगों की ओर बहुत ही नम्रता से पेश आना है। And they should be subject to their own husbands. और अपने अपने पतियों के अधीन में रहना है। So that is very important. तो ये बहुत that they should recognize that the husband is the head of the house. तो उनको ये बात की पहचान रखनी है कि उनके जो पति हैं उस परिवार के सिर है। That they should not keep on fighting and quarreling in the house. तो उनको घर में झगड़ते लड़ते नहीं रहना है। And they should not do their own desire and will. और उनको खुद की इच्छा खुद की अभिलाषाओं को करते नहीं रहना है। Because there says that the word of God may not be dishonored. क्योंकि यहाँ पे लिखा है ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होना पाए। When the word of God is dishonored, the name of Jesus will be dishonored if the wife does not submit to the husband. परमेश्वर का वचन की निंदा होता है, परमेश्वर यीशु मसीह का नाम का निंदा होता है जब एक पत्नी जो है अपने पति के अधीन में नहीं होती है। Just like Eve, she did not listen to her husband. She went ahead and took her own decision and ate the fruit which the devil told her without consulting the husband. And afterwards, she told her husband also to eat. तो जैसे कि ईव के विषय में हम देखते हैं, ईव अपना खुद का निर्णय लेती है, जैसे सांप उसे कहता है वैसे ही जाके उस फल को तोड़कर खा लेती है और बाद में जो है अपने पति को भी उस फल को खिला देती है। So then, because of that, there was a disgrace in that family. तो उसकी वजह से उनकी जो परिवार में एक निंदा की बात हो जाती है। This is written for all young women with children in the home. तो ये सारी जो जवान स्त्रियां हैं उनके लिए लिखी गई है जिनके पास अपने घर में बच्चे होते हैं। This applies to young sisters who are also not married. तो ये सारी बातें जो है ऐसी जो जवान बहनें हैं उन पर भी लागू होते हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। They should respect their father and mother. उनको अपने माता पिता का सम्मान आदर करना है। And they should learn all the housework. और उनको घर के जितने भी काम काज है सब कुछ सीखना है। So that when they get married, they will know how to manage a house. ताकि जब उनकी शादी हो जाए तो उनको पता चले कि घर को कैसे संभालना चाहिए। And then after they get married, they have to submit to their husband so that the word of God can be honored. और शादी होने के बाद उनको अपने पति के अधीन में होना चाहिए ताकि परमेश्वर की नाम की जो है महिमा हो। So this is written to all young ladies, young sisters. तो ये सब कुछ लिखा हुआ है जवान स्त्रियों के लिए, बहनों के लिए। And now come to young brothers. और अब हम आएंगे जवान भाइयों के विषय में। Verse 6. 6 वचन। It says, likewise, here urge the young men to be sensible. ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो। Sensible means do everything with proper sense and don't do foolish things. संयमी होने का अर्थ यह है कि सब कुछ सही तरीके से करे, कोई मूर्खता का काम ना करे। See, every time the Apostle Paul is saying be sensible means
Do things with a proper mind and don't do foolish things. हर बार प्रेरित पौलुस यहाँ पे कहते हैं कि संयमी रहो। वो कहते हैं कि बहुत ही अच्छे दिमाग के साथ सारे काम किया करो सही तरीके से, ना कि मूर्खता से। When any problem you have, consult God and also consult your mature elders. अगर आपकी कोई परेशानी है तो आप अपने जो प्राचीन है उनसे सलाह ले सकते हैं और परमेश्वर से सलाह ले सकते हैं। Proverbs chapter 3 says, "Do not be wise in your own eyes." नीति वचन 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि खुद के नजरों के सामने अपने आप को बुद्धिमान ना समझें। When we are wise in our own eyes, we do a lot of foolish things and we think that we are right when we are actually wrong. तो जब अपने खुद के आंखों के सामने अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, बहुत सारे मूर्खता के काम करते रहते हैं, जबकि हम सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सब कुछ सही है। And verse 7 says, "In all things show yourself to be an example of good deeds." 7 वचन में लिखा है, और सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। All young men should start doing good things. और सारे जो जवान पुरुष हैं उनको अच्छे काम करना शुरू करना है। Help in the home. घर में मदद कीजिए। Help in the church. कलीसियाओं में मदद कीजिए। Help others in your workplace. और जो दूसरे लोगों को मदद कीजिए अपने काम करने वाली जगह पर। Help others in your neighborhood. और आपके जो अड़ोस पड़ोस में लोगों को मदद कीजिए। There are a lot of good things we can do to other people. बहुत सारे अच्छे काम हैं जो आप कर सकते हैं दूसरे लोगों के लिए। Practice to do good things. और अच्छे काम करने की एक अभ्यास किया करें। To do good things, we have to learn to be unselfish and not to be selfish. अगर अच्छे काम हमें करने होते हैं तो हमें स्वार्थी उसमें नहीं बन सकते, हमें एक निस्वार्थता से उसे करना होता है। We have to deny our own comforts and our relaxation and try to help other people. हमारे खुद की जो आराम और सुख विलास को हमें त्याग कर हमें दूसरे लोगों की मदद करनी है। As the Holy Spirit speaks to us. जैसे ही पवित्र आत्मा हमसे बातें करते हैं। So God wants all young people to do a lot of good works. और परमेश्वर चाहते हैं कि सारे जो जवान पुरुष हैं सारे बहुत अच्छे भलाई कामों को करें। It says whatever you do it for the glory of God. जैसे लिखा हुआ है, जो कुछ भी आप करते हो सब कुछ परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए करें। Praying, talking, sharing, singing, everything, and helping around in the home, helping around the church, do it for the Lord. प्रार्थना करना, वचन बोलना, गीत गाना और वचन बांटना और घरों में मदद करना और आजू बाजू में मदद करना, जो कुछ भी करते हो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए करें। Then it says with purity in doctrine. और फिर लिखा हुआ है कि और उपदेश में सफाई। Nowadays there are so much of doctrines, wrong doctrines floating around in Christians. There are them, and we tend to believe what everybody wants say. तो बहुत सारे गलत उपदेशों का प्रचार बहुत जगह पे हो रहा है, तो ऐसा होता है कि हम उन उपदेशों में विश्वास करने भी लग जाते हैं। So Brother Zach told us that we have to know whether the thing is correct. He says, did Jesus do it and did Jesus preach it? तो हम कैसे जैसे ब्रदर जैक कहते हैं कि हम कैसे जान सकते हैं कि ये सही उपदेश है, तो हमें ये देखना है कि क्या यीशु मसीह ने ये किया था या यीशु मसीह ने इसका प्रचार किया था। Did the apostles do it and did the apostles preach it? क्या प्रेरित लोगों ने इस कामों को किया है, क्या उन्होंने इस बातों का प्रचार किया है? Then we will all be very safe. तो हम सभी सुरक्षित हो सकते हैं। Otherwise, there are so many deceivers going out as preachers and teachers and prophets, and like we know that then we will get deceived. तो हम देखते हैं, नहीं तो क्या होगा, बहुत सारे धोखा देने वाले हैं, जैसे कि भविष्यवक्ता है, प्रचारक लोग हैं, इन सब सारे के बातें सुनकर हम भी जो है धोखे में आ जाएंगे। For example, now during this American election, there were so many people who were prophets, so-called prophets and preachers were saying that the President Donald Trump is going to win, and they prophesied that. उदाहरण के तौर पे जब अमेरिका में जो चुनाव हो रहा था, तो बहुत सारे प्रचारक लोगों ने, भविष्यवक्ताओं ने ये भविष्यवाणी की थी कि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड है वही जीतने वाले हैं। But they were all proved wrong. परंतु हम देखते हैं ये साबित हो गया कि जो भी उन्होंने कहा था सब कुछ गलत हुआ। Because they were all false prophets. क्योंकि वो सारे झूठे भविष्यवक्ता थे। A true prophet, if he speaks, something will come to pass. तो अगर जो सच्चा भविष्यवक्ता है वो जो कुछ भी कहेगा वो सब कुछ हो जाता है वैसे ही।
people, we should not listen to them. तो ऐसे लोगों की बिल्कुल भी हमें सुनना नहीं है। We should only listen to godly people who give us true and godly advice. तो सिर्फ हमें धार्मिक लोग और सच्चे जो लोग हैं, जो परमेश्वर ने जिनके द्वारा उपदेश दिया है, उनकी ही सुनना है हमें। The internet is full of so many false teachers. तो ये दुनिया में पूरे जो है झूठे जो उपदेशक लोग भरे हुए हैं। And there are so many believers who are keeping on listening to their messages. और बहुत सारे विश्वासी भी है जो उनके संदेशों को बहुत बार सुनते रहते हैं। Most of them, we don't know what their private lives are. और बहुत लोगों के बारे में हमें पता नहीं है कि उनका जो रहस्य में व्यक्तिगत जीवन कैसा है। Whether they love money or they are living in sin. क्या वो पैसों से प्रेम रखते हैं या तो वो पाप में जी रहे हैं। So it's better to know and to follow the teachings of those who are godly people. तो इससे अच्छा है कि हम जो है धार्मिक लोग और अच्छे लोग हैं उनके जो उपदेशों का पीछा करें, उस पर विश्वास करें। That is why we should always go after people who have sound doctrine. तो इसलिए हमें ऐसे लोगों का पीछा करना है उन जिनके पास एक अच्छा उपदेश होता है। And it says that also after that young people should be also be dignified. और फिर लिखा हुआ है कि जो जवान पुरुष है उन्हें गंभीरता बरतनी चाहिए। They should have very good manners. तो उनके पास बहुत ही अच्छा एक बर्ताव होना चाहिए। They should not have silly talk. उनके पास कोई खाली की बातें नहीं होनी चाहिए। And do all foolish things like the children, like the young people of the world. जैसे कि जवान लोग जो दुनिया में है वैसे मूर्खता के काम वो नहीं करना चाहिए। It says verse 8, sound in speech which is beyond reproach. और फिर 8 वचन में लिखा हुआ है कि ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके। So that the opponent may be put to shame, having nothing bad to say about us. जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। So there are so many people who oppose the gospel, who are against Christ, that they should not criticize believers. तो बहुत सारे लोग हैं जो मसीही विरोधी है, जो वचन के विरोधी है, तो वो विश्वासियों पर कभी भी दोष लगाने का अवसर हमें नहीं देना है। The young people should learn to talk less and to do good, and more to act more, rather than to just talk a lot and act less. तो जो जवान भाई हैं उनको जो है बातें कम करनी है और ज्यादा काम करना है और अच्छे कामों को करना है, या इसके बजाय कि ज्यादा बातें कर काम कम करे। So here we have seen the Apostle Paul telling the Titus to speak to older men, older women, older men, younger women, younger men. तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रेरित पौलुस तीतुस को कहते हैं कि वो बूढ़े पुरुष, स्त्री और जवान स्त्री और पुरुष इन लोगों से बातें करें। Now he comes to the workplace. अब वो आते हैं काम करने वाले जगह के विषय पर। 9 वचन, urge bond slaves to be subject to their own masters in everything, to be well pleasing and not argumentative. 9 वचन, दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहें और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें और उलट कर जवाब ना दें। During the times of the Apostle Paul and Titus, there were people who were slaves. तो हम देखते हैं प्रेरित पौलुस और तीतुस के समय में बहुत सारे दास भी थे वहां पर। Then many slaves became turned to Christ. और बहुत सारे जो गुलाम थे उनमें से वो मसीही बन चुके थे बाद में। This means currently we do not have slaves, but we have to work for our employers. तो इसका अर्थ ये है कि अभी तो हम तो गुलामी में नहीं है, परंतु हमें अपने जो मालिक है उनके लिए काम करना होता है। So we have to submit to our masters or to our bosses. तो हमारे जो बॉस है, हमारे जो ऊपर के अधिकारी हैं, उनके अधीन में हमें रहना है। And our behavior should be good and we should not argue. तो हमारा जो स्वभाव है वो अच्छा होना चाहिए, हमें उनके साथ कोई विवाद नहीं करना चाहिए। Don't take part in all these union activities that try to talk bad about your boss and criticize and shout and fight. तो कोई भी यूनियन के कामकाज में हमें हिस्सेदार नहीं होना है और जो चिल्लाते रहते हैं अपने बॉस के विरोध में और कंपनी के विरोध में बातें करते रहते हैं। And verse 10, that they should not steal or pilfer. और 10 वचन में लिखा है कि चोरी चालाकी वो ना करें। So sometimes we are tempted to take small things from the office, from the boss's things, and take it to our own house. तो बहुत बार ऐसी लुभावनी बात आती है कि हम बॉस के ऑफिस में से कुछ चीज अपने लिए अपने घर पे लेके जाते हैं।
or to waste time और कैसे अपने समय को बर्बाद करते हैं and not do our work properly. और हमारे कामों को सही तरीके से नहीं करते हैं. And if we do these things properly, then we adorn it says we adorn the doctrine, verse 10, of our God and Savior in every respect. फिर कहते हैं अगर हम इन सारी बातों को सही तरीके से करेंगे तो सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश को हम शोभा देंगे. So God has allowed us to go to our workplaces, first of all, to that we may earn money and support our families. तो परमेश्वर हमें अनुमति देते हैं कि हमारे कामकाज की जगह पर हम जाएं ताकि हम उसमें से कुछ कमा सकें और अपना परिवार को जो है उसे संभाल सकें. And our behavior also should be like Christ. और हमारा जो बर्ताव है वो भी मसीही जैसा होना चाहिए. So that others seeing our behavior will turn to Christ and know that we are true Christians. ताकि जो हमें देखते हैं वो हमें देखकर प्रभु की ओर मुड़ जाएंगे और वो समझेंगे कि हम सच्चे मसीही हैं. How will others know that they are true Christians? Because of our behavior. कैसे लोग पहचान पाते हैं कि हम सच्चे मसीही हैं? वो हमारे बर्ताव के द्वारा ही पहचान पाते हैं. It says we have to adorn the doctrine, adorn the teaching of God, of our God and Savior. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश को शोभा देना है. So it is so nice to hear the wonderful messages and to read the word of God and the words of our Lord Jesus Christ. तो परमेश्वर के वचनों को सुनना, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना और उनके बारे में विषय में सुनना बहुत ही अच्छा होता है. But how do we adorn or decorate it? पर तो हमें उसको कैसे हम उसका शोभा बढ़ा सकते हैं? When we do it. जब हम उस कार्य को करते हैं तभी. For example, if God tells us to be faithful in money matters, we must also spend our money very carefully and not go into debt. तो उदाहरण के तौर पे जब हमें परमेश्वर कहते हैं कि अपने के पैसों के विषय में हमें विश्वास योग्यता बरतना है, इसका मतलब ये है कि हमारे पैसों को बहुत ही संभाल कर हमें कर्ज करना है और उसमें कर्जे में नहीं जाना है उसके वजह से. We must not keep on borrowing money for everything. तो हमें हर चीजों के लिए पैसा उधार लेते हुए नहीं बैठना है. Recently, we had a brother in our church who borrowed money to buy something and did not really return the money for 11 months. तो हाल ही में हमारे कलीसिया में ऐसा एक घटना हुआ कि एक भाई ने पैसे लिए कुछ सामान खरीदने के लिए, परंतु 11 महीने के बाद भी उन्होंने उस पैसे को लौटाकर नहीं दिया है. And afterwards he leaves the church. और उसके बाद वो जो है कलीसिया छोड़ देते हैं. So this is a disgrace to the name of the Lord. तो ये परमेश्वर के नाम की निंदा होने वाली एक बात है. And our behavior should show that we are truly glorify the name of the Lord. परंतु हमारे बर्ताव के द्वारा हमें ये दर्शाना है कि हम सच में परमेश्वर के नाम की महिमा ला रहे हैं. Because Jesus Christ has to come and to save us from all our bad habits. क्योंकि यीशु मसीह आए हैं ताकि हमें हमारे सारे जो बुरी आदतें हैं उसमें से बचाने के लिए. Watching all bad movies and bad programs on the TV, we should not do. Let it be for the unbelievers. As a child of God, we should be holy. तो जैसे कि टीवी में या दूसरी जगहों में जो टीवी प्रोग्राम्स होते हैं, जो पिक्चर होती है, वो सब देखने के लिए वो हम जो है प्रभु मसीह के बच्चे हैं, हमें वो सब कुछ नहीं करना है. जो अन्य जाति है, जो अविश्वासी है, उनको ये सारे काम करने दीजिए. We should watch only good programs. हमें सिर्फ अच्छी जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वही देखने हैं. Because if we watch all the bad programs and movies and films, then anybody seeing us will say, this person is talking about Christ, but he is behaving like another person, not like non-Christian. तो हम देखते हैं कि अगर कोई देख लेंगे कि हमने कोई बुरी पिक्चर देख रहे हैं, बुरी प्रोग्राम्स को हम देख रहे हैं, तो ये कहेंगे कि ये बातें तो बहुत ही बड़ी-बड़ी करते हैं, परंतु इनका जीवन जो है दूसरे जो अविश्वासी है, जो मसीही नहीं है, उनके जैसा ही है. Recently, I heard a brother was playing some internet game called PUBG, which is a very addictive game and full of violence. तो हाल ही में मैंने सुना कि एक भाई को एक गेम खेलने का जो आदत है वो पबजी करके उसके बहुत ही दिन में लत लग जाती है. This is not for believers and disciples of Jesus Christ. तो ये सब कुछ मसीही लोगों के लिए, ये यीशु मसीह के चेलों के लिए नहीं है ये गेम. And he was also influencing other young people also to play this game. और वो बहुत सारे जो जवान लोग हैं उनको भी प्रलोभन दे रहे थे कि ये सारे जो गेम है खेलने के लिए. And plus he wanted to do a lot of other service for the Lord. और उसके बजाय उनको परमेश्वर के लिए भी बहुत सारी सेवकाई भी और करनी है. So this brings a very bad name to the name of Christ.
तो ये जो है परमेश्वर के नाम के लिए बहुत ही निंदाजनक बात लाती है। So Jesus Christ has come to save us from all our bad habits and all these bad ways that the people of this world live. तो यीशु मसीह आए हैं हमारे जो सारे जो बुरे बर्ताव है, बुरे तरीके हैं, उसमें से बचाने के लिए, जैसे ये दुनिया के लोग करते रहते हैं। If we have any difficulty, we can always ask the elders of the church. अगर हमें कोई भी परेशानी है, समस्या है, तो हम हमेशा अपने प्राचीनों से मदद मांग सकते हैं। Verse 11 says, "The grace of our God has appeared, bringing salvation to all men." और 11 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है, जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। So the God, when Jesus came, He gave us with grace. That is God's tremendous help to help us to overcome sin and to forgive us all our sins. तो परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ है ताकि हमें जो है मदद मिल सके और हमारे जो सारे पापों के ऊपर जय पा सके और सारे पापों को जो है हमें क्षमा मिल सके। And what does the grace of God do in our life? और ये परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में क्या करता है? Not just forgive our sins, सिर्फ हमारे पापों को क्षमा नहीं करता, not just free us from hell and the power of the devil, सिर्फ हमें नरक से या शैतान के सामर्थ से ही नहीं छुड़ाता, but verse 12 also that from now onwards we will not live an ungodly life. और 12 वचन में लिखा है ताकि अब से हम एक अधार्मिक जीवन को ना जी पाए। इसलिए The grace of God, verse 12 says, we'll read the full verse, instructing us to deny ungodliness and worldly desires and to live sensibly and righteously and godly in this present age. 12 वचन में हम पढ़ेंगे, और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। So before we came to Christ, we used to live a very ungodly life, unchristlike life. Now we should live a Christ-like life. क्योंकि हम प्रभु में आने से पहले एक अभक्ति का जीवन बिताते थे, तो अभी हमें एक भक्ति का और मसीही एक जीवन हमें बिताना है। We sang that song, I want to walk with Jesus Christ all the days of my life. जैसे हमने गीत को गाया कि मुझे मेरे जीवन के हर एक दिन प्रभु यीशु के संग चलना है। I want to pray like Jesus. मुझे यीशु मसीह के समान प्रार्थना करना है। I want to read the word of God and meditate like Jesus. मुझे परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है, उस पर मनन करना है यीशु मसीह के समान। I want to share the word of God like Jesus did. जैसे मैं यीशु मसीह परमेश्वर के वचनों को बांटना चाहता हूँ जैसे यीशु ने किया। And I want to behave at home and in my workplace and in the church as Jesus did. और मुझे मेरे घर में, दफ्तर में और मैं कलीसिया में ऐसे बर्ताव करना चाहता हूँ जैसे यीशु ने किया था। And God has given us the Holy Spirit, so He will guide us and lead us to show what the right thing is and how to behave and give us the power over it, the power for it. और पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि वो हमारी अगुवाई कर सके, हमें मार्गदर्शन दे सके, क्योंकि सही चीजें क्या है वो करने के लिए, और हमें अपने जीवन के लिए सामर्थ्य भी देंगे वो। And we live in this world where we have so many worldly desires. जब हम इस संसार में जीते हैं तो बहुत सारी संसारिक इच्छाएं हमारे अंदर होती हैं। Keep on eating and drinking and to have good food and good clothes and to become great and to show off. These are all the worldly desires. तो अच्छा खाना खाना, पीना और फिर दिखाना, अच्छे कपड़े पहनना और सारी चीजों की अभिलाषा रखना, ये सारी जो है संसारिक अभिलाषाएं हैं। The grace of God, that is the help of God, enables us to deny all these things. परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का मदद हमें ये कहता है कि हमें इन सारी चीजों को नकारना है। This is not for me. This is for the people of this world. They are going to hell. I am going to heaven. God has saved me. Now I am not going to live my old life like this. तो हमें ये कहना है कि ये मेरे लिए नहीं है, ये संसार के लोगों के लिए है। तो मुझे परमेश्वर ने बचाया है और मुझे स्वर्ग में जाना है, इसलिए मुझे प्रभु यीशु मसीह जैसे कहते हैं वैसा ही एक जीवन जीना है। As it says, that to live sensibly, that means with much sense, with much wisdom in this world. और कहते हैं कि यहाँ पे मुझे संयमी तरीके से, बहुत ही ज्ञान से मुझे इस संसार में अपने जीवन को बिताना है। Live righteously, that is trust in God and do the right thing always. धर्म से जीना मतलब जो सही चीजें हैं, परमेश्वर पर विश्वास कर उन सही चीजों को ही करना। And the Holy Spirit will tell us to do what is right every day. और पवित्र आत्मा हमें बताएंगे कि हर दिन हमें करने के लिए क्या सही चीजें हैं। And to live godly, that means to live like Jesus in this present time.
तो और भक्ति का जीवन बिताना मतलब इस अभी का वर्तमान समय है उसमें यीशु मसीह के समान एक जीवन जीना। And why is verse 13 looking for the blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior Christ Jesus? और 13 वचन में और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहना। We should have a hope in our heart that Jesus will come very soon, and when Jesus comes, we should be ready for him. तो हमारे अंदर एक आशा होना चाहिए कि यीशु मसीह बहुत ही जल्दी आने वाले हैं और जब यीशु मसीह आएंगे तो हमें उनके लिए बहुत ही तैयार रहना है। We should not be found living in sin. तो हम ऐसे पाए नहीं जाना चाहिए जैसे कि हम पाप में जी रहे हो। In the pleasures of this world, gossiping and backbiting, इस दुनिया के सुख विलासों में गपशप करते हुए, पीठ पीछे बातें करते हुए, running after money, पैसों के पीछे भागते हुए running after honor, और मशहूरता के पीछे आदर के पीछे भागते हुए and living for ourselves. और अपने खुद के लिए जीते हुए। But if Jesus comes, we should be ready. परंतु यीशु मसीह जब आएंगे तो हमें तैयार रहना है। We may die also today, we don't know. तो हम आज मर भी जाएंगे परंतु हमें पता नहीं है। So we should be ready. तो इसलिए हमें तैयार रहना है। We should set our relationship with everybody and try to keep a clear conscience. तो हमें सबके साथ रिश्ते को सही कर देना है और एक शुद्ध विवेक रखना है। Forgive everybody. सभी को क्षमा कर देना है। Take the most of our time that God has given us every day. तो सारे जो परमेश्वर ने समय दिया है उसको हमें अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना है। God has given every day a new day for us to live. तो परमेश्वर ने हर दिन एक नया दिन हमें दिया है जीने के लिए। And then we must live faithfully every day of our life. और फिर हमें विश्वास से योग्यता से हर एक दिन को जीना है। And when we meet Jesus after we die, or when we see him face to face, Jesus will say, "Well done, you lived for me all the days of your life." और जब हम मर जाएंगे या यीशु मसीह को जिस दिन हम देखेंगे उस दिन यीशु मसीह कहेंगे कि तुम्हारे जीवन भर तुमने अच्छे कामों को ही किया है। Because that is the purpose why he came into this world. क्योंकि वही उद्देश्य के साथ ही वो इस दुनिया में आए थे। Verse 14 says, "Who gave himself for us, that he might redeem us from every lawless deed, and purify for himself a people of his own possession, zealous for good deeds." 14 वचन, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा लें और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना लें जो भले भले कामों में सरगर्म हो। So God is in the process of purifying you and me, brothers and sisters. तो परमेश्वर यही प्रोसेस में है कि हम और आपको प्रतिदिन शुद्ध करते जाएं। We have got lots of faults and lot of bad habits. सारे जो बुरे काम हैं और जितने भी बुरी आदतें हैं उसमें से शुद्ध करना। We don't know how to talk properly. तो हमें नहीं पता है कि हमें किस तरीके से सही बात करना है। We don't know how to spend our time properly. तो हमें सही तरीके से समय का इस्तेमाल करने नहीं आता। How to use our money properly. हमारे पैसों का इस्तेमाल हमें कैसे करना है। And whether we should take credit for ourselves or give glory to God. क्या अपने लिए महिमा ले ले या अपने परमेश्वर को महिमा दे। That the Lord wants to purify us. तो परमेश्वर हमें शुद्ध करना चाहते हैं। Through all problems and troubles that come across our way. हमारे जीवन में हमारे मार्गों में जो भी समस्या और परेशानी आती हैं उनके द्वारा। So he wants to make us humble in the heart. तो वो हमें अपने हृदय में नम्र बनाना चाहते हैं। And victory over all sin in our life. और हमारे जीवन के सारे पापों के ऊपर जय देना चाहते हैं। And he wants us to make us very interested, zealous for good deeds. और वो चाहते हैं कि हम भले भले कामों में बहुत ही दिलचस्प हो, सरगर्म हो। This is how Jesus lived when he was in this world. तो ऐसे ही यीशु मसीह जिए जब वो इस दुनिया में थे। And we also should live like that. और हमें भी वैसे ही जीना है। Whenever opportunity comes, we must humble ourselves and cleanse and purify ourselves. और जब भी मौका आता है तो हमें अपने आप को नम्र करना है और अपने आप को शुद्ध और साफ करना है। And do good to all men. और हमें सब मनुष्यों के लिए भले काम करना है। And especially to believers. और खास करके विश्वासियों के लिए। Because they are the family of God. क्योंकि वो परमेश्वर के परिवार हैं। And do good also to all our relatives and to our neighbors and our friends and also our enemies. और सारे भलाई के काम करना है हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे जो मित्र हैं, हमारे शत्रु हैं, सभी के लिए। There are many people who do not like us.
बहुत सारे लोग रहेंगे जो हमें पसंद नहीं करते होंगे। And we can ask God, Lord, how can I do some good thing to them? फिर हम परमेश्वर से पूछ सकते हैं कि प्रभु उनके लिए हम भले कामों को कैसे कर सकते हैं? The Holy Spirit will tell us. फिर पवित्र आत्मा हमें बताएंगे। I remember I had once my boss, immediate boss, was very cruel to me and very did a lot of evil things to me. तो मैं एक याद करता हूँ कि मेरे जो बॉस थे, ऊपर के अधिकारी थे, वो बहुत ही कठिन थे, बहुत ही क्रूर बातें और कठिन बातें मुझसे कहते थे, करते थे। This was when I was in college. तो ये होता था जब मैं कॉलेज में था तभी। Then when his birthday came, फिर उनका एक जन्मदिन आया तभी। and the Holy Spirit told me, go and buy a cake and give it to him. तो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि उनके लिए एक केक खरीदो और उनको जाकर दे दो। And when I gave it to him, he was very surprised. जब मैंने वो केक उनको दिया तो वो बहुत ही आश्चर्य हो गए। He said, George, I did so many bad things to you, and how you are doing this good to me. तो उन्होंने कहा कि जॉर्ज, मैंने आपसे बहुत ही बुरा बर्ताव किया है, फिर भी आप इतने अच्छे काम मेरे लिए कैसे कर पाते हो? This is how we can do good and to everybody, because we are here for a short time on this world. तो ऐसे ही हम भले के काम सभी के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हम इस दुनिया में बहुत ही कम वक्त के लिए हैं। We are heavenly people. तो हम जो है स्वर्ग के जन हैं। We should live a heavenly life like Jesus did. और हमें एक स्वर्गीय जीवन को बिताना है जैसे यीशु ने बिताया। Like Jesus came from heaven to earth, and he did only good to people, and in spite of that, people did all bad things to him. जैसे यीशु मसीह स्वर्ग से भूमि की ओर उतर के आए और उन्होंने सारे मनुष्यों के लिए भलाई की ही कामों को किया, परंतु मनुष्य क्या करते हैं, उनके लिए हमेशा बुराई ही करते गए। So even when we do good to many people, they will do bad to us. भले ही हम सारे लोगों के लिए अच्छे कामों को करते जाए, परंतु वो हमारे साथ बुरा ही काम करेंगे। We are doing it for the Lord and not for people. तो हमें ऐसा करना है कि हम सब कुछ प्रभु के लिए कर रहे हैं, ना कि मनुष्यों के लिए। And then we meet the Lord will really be happy with us. जब हम प्रभु को मिलेंगे तो प्रभु हमसे बहुत ही प्रसन्न होंगे। The last verse, verse 15. 15 वचन, आखिरी वचन। These things speak and exhort and reprove with all authority, let no one disregard you. पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। So the Apostle Paul told Titus, he tells each one of us, if you want to follow the Lord, then you must speak with all authority. तो प्रेरित पौलुस तीतुस को कहते हैं, और वो हम सभी को भी यही कहते हैं, अगर आपको सच्ची में प्रभु यीशु मसीह का पीछा करना है तो आपको अधिकार के साथ कहनी है ये बातें। And with great zeal we must tell them and correct people who are not listening. और बहुत ही जोश के साथ ये कहना है, और जो लोग नहीं सुनते हैं उनको इन बातें कहकर उनको सुधारना है। Because most people in the church are disobedient, they like to do what they like. क्योंकि बहुत सारे जो लोग कलीसिया में हैं वो आज्ञा मानते नहीं है, वो जो करना चाहते हैं वही वो करते हैं। Just like a teacher corrects his own children lovingly, we also must correct so that they may turn to the Lord. जैसे एक शिक्षक अपने जो बच्चे रहते हैं उनको सही करते हैं बहुत ही प्रेम से, वैसे ही परमेश्वर के लिए हमें जो लोग हैं हमारे अंत नीचे, उनको भी ऐसे ही सही तरीके से सुधारना है। Because we want the best for us, the brothers and sisters around us. क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे भाई बहनों के साथ बहुत ही उत्तम हो जाए, अच्छा हो जाए। So for all eternity they will have no regrets. ताकि उनके अनंत जीवन तक उनको कोई पछतावा ना हो इसी बात So से। that they will stop all the bad activities and start doing good. ताकि वो सारे जो बुरे काम है वो बंद कर भलाई के कामों को करने लग जाए। And so the Apostle Paul told him that nobody should disregard you, Titus. और फिर प्रेरित पौलुस तीतुस को कहते हैं कि कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। So even if people don't like you because you are young, doesn't matter. You speak the words of God whether they like it or don't like it. तो वो कहते हैं कि तुम जवान हो, इसलिए कोई अगर आपकी बातों को नहीं सुनता, तुझ जानता है, तो वो पसंद करे ना पसंद करे तो भी आपको प्रभु के वचन को जो है उनको सुनाना ही है। All the prophets of God spoke the word of God to the people who are very, very disobedient. तो सारे जो परमेश्वर के नबी थे, भविष्यवक्ता थे, परमेश्वर के वचनों को उन लोगों को बताते हैं जो बिल्कुल भी आज्ञा को मानते नहीं थे। But they listened to the voice of God and spoke it, whether people accepted it or did not accept it.
परंतु परमेश्वर की वाणी को सुनकर परमेश्वर के वचनों को उन्हें बताना ही है, भले ही लोग उसे स्वीकार करें या ना स्वीकार करें तो भी। The main purpose of these verses are that we should change our lifestyle and live as Jesus lived. तो ये वचनों का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारा जो जीवन शैली है उसे हमें बदल कर यीशु मसीह जैसे एक जीवन बिताते थे वैसे ही हमें बिताना है जीवन। Young brothers, sisters, young sisters, older brothers, older sisters. बूढ़े स्त्री पुरुष भाई और बहन और जवान भाई और बहन। One day we have to give an account to the Lord. तो एक दिन हमें परमेश्वर को लेखा देना होगा। Whether we listen to the Holy Spirit or just did what we liked. या क्या हमने पवित्र आत्मा की सुनी है या हमें जो अच्छा लगता था वही कामों को हमने किया है। We can only change ourselves while we are living in this world. हम अपने आप को तभी बदल सकते हैं जब हम इस दुनिया में रहते हैं। After we die, nothing will be changed. और हमारे मरने के बाद हम कुछ भी नहीं बदल सकते। We cannot know respect of how much people pray for us. Nothing will be changed. The final exam is over. तो कितने भी लोग हमारे लिए प्रार्थना करें, कुछ भी करें, कुछ भी बदलाव नहीं हो सकता है क्योंकि जो आखिरी का जो परीक्षा है वो खत्म हो चुका होता है। And every day God gives us that we may change and become more and more like Him. और प्रतिदिन परमेश्वर हमें देते हैं ताकि हम जो है प्रतिदिन बदलते जाएं और ज्यादा करके प्रभु के समान बनते जाएं। In Hebrews it says, today is the day of salvation. इब्रानियों में ये लिखा है आज का दिन जो है उद्धार का दिन है। Today is the day to change. आज का दिन है बदलाव का दिन है। Today is the day to say sorry and ask forgiveness. आज का जो दिन है उसमें हम दूसरों से क्षमा मांगे, उनसे क्षमा याचना करें। Today is the day to change your bad habits and stop watching the TV and doing all secret sins. आज आपके लिए दिन है कि आप अपने जो बुरे आदतें हैं उसे सब बदल दे और जो पाप करने का आदत है, जो बुरे प्रोग्राम को आप देखते हैं उसे आप बंद कर दीजिए। So God can doing a work of salvation in our own life. ताकि परमेश्वर अपने उद्धार का जो काम है हमारे जीवन में करना शुरू कर दे। So may the name of the Lord be glorified in each one of our lives. परमेश्वर की नाम की महिमा हमारे हर एक के जीवन के द्वारा होती रहे। Tomorrow we will do Titus chapter 3. कल हम करेंगे तीतुस की किताब 3रा अध्याय। I hope brothers and sisters you all are revising it so that on Sunday when the test comes you all should do well, and it is a very easy test. तो मैं सोचता हूँ कि आप लोग सब लोग जो है भाई बहन लोग ये सब कुछ पढ़ते रहेंगे ताकि जो संडे को जो आ रहा है एक एग्जाम आ रहा है, बहुत ही आसान एग्जाम होगा वो। So we shall pray. प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, we pray that you will bless us and fill us from प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद दें कि हम आपको पवित्र आत्मा से सबको भर दे लॉर्ड, आपको सच्चा पश्चाताप करें. We will repent from our sins and believe that you can do everything well in our own lives, Lord. प्रभु आपको ये हम लोग धन्यवाद देते हैं इस समय प्रभु, और हमारा जीवन में बदलावट लेके आ सकता है प्रभु जी. Thank you Lord, you can change our lives. We also pray for those who are not well, Lord, those who are sick, and especially Brother John's brother-in-law, Lord. We pray thou will touch him, Lord, and help him, Lord, to turn to you and give him healing in his body. And all the other brothers, Lord, who are improving, Lord, just touch them and give them quick healing, Lord. Help us, Lord, to really love you with all of our hearts and put our minds on you. अपना दृष्टि आपके ऊपर रखे प्रभु जी, and आपको जो तकलीफ में है आपको छुड़ाने वाला है प्रभु जी. आपका हमारा संगति आपके साथ ही हो रही प्रभु जी, और हम पवित्र स्वर्गीय स्थान पे हम हमेशा रहे प्रभु जी. तो हमको सिखा दो प्रभु जी आपका वचन, और हमको प्रार्थना करने के लिए भी सिखाओ प्रभु जी. थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस टाइम. वर्शिप यू, आपको आदर देते हैं, आपका महिमा देते हैं, आपका प्रशंसा देते हैं. लॉर्ड वी वर्शिप एंड अडोर यू एंड ब्लेस योर नेम लॉर्ड. थैंक यू फादर. वर्शिप यू एंड ब्लेस यू लॉर्ड. यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन.